بدعت کسے کہتے ہیں اور بدعت کا شرعی حکم کیا ہے۔ یعنی آج آپ دیکھیں مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں کہ جو بات بات پر سامنے والے کو بدعتی قرار دیتے ہیں۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم آپس میں ہی لڑ رہے ہوتے ہیں، آپس ہی کے اندر ایک دوسرے کو جو ہے بدعتی قرار دے رہے ہوتے ہیں، مشرک قرار دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ابھی ہم بدعت کے مفہوم کو سمجھیں گے تاکہ ہماری زندگی کے معاملات آگے آسان ہو۔ کوئی ہم سے بات کرے بدعت کے حوالے سے تو ہم اس کو جواب دے سکیں۔ سامنے والا بدعتی کہتا ہے تو آپ اس سے جب سوال کریں گے بھائی بدعت کا معنی کیا ہے، بدعت کی کتنی اقسام ہے، بدعت کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ 100 میں سے 999 لوگ جواب نہیں دے سکتے۔ بس انہیں رٹا دیا جاتا ہے اور وہ جو ہے آ کر جو ہے فائر بولنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی بدعت ہے۔ پھر مسلمانوں کے اندر ہی فرقے بنتے ہیں، آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہے۔ تو بدعت کے حوالے سے اللہ نے قرآن میں فرمایا بدیع السماوات والارض، اللہ ہے جو زمین و آسمان کو ایجاد کرنے والا ہے، یعنی پیدا کرنے والا ہے۔ تو زمین و آسمان کی تخلیق اللہ نے کی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کسی چیز کو وجود دینا، نئی چیز بنانا، اسے بدعت کہتے ہیں۔ یہ مفہوم ہمیں قرآن سے مل گیا کہ اللہ جو ہے چیزوں کی تخلیق کرنے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ اب آتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر جو بدعت ہے اس کا کیا معاملہ ہے۔ تو بدعت کہتے ہیں کوئی نئی بات، کوئی نئی چیز۔ اب وہ نئی چیز نیا عقیدہ بھی ہو سکتا ہے، نئی بات بھی ہو سکتی ہے۔ اگر وہ نیا عقیدہ جو ہے اللہ رسول سے ٹکراتا ہے تو وہ بدعت گناہ کہلائے گی، اور وہ نیا عقیدہ اللہ رسول کی تعلیمات کے خلاف ہے تو وہ بدعت دلالہ ہے۔ دلالہ کہتے ہیں گمراہی کو، جیسا کہ حدیث پاک میں آیا کل بدعت دلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اب اس کو ہمیں سمجھنا ہے کہ ہمارے پاس جب کوئی حدیث آتی ہے تو ہمیں تمام اس موضوع کی احادیث کو جمع کرنا ہوتا ہے۔ یعنی ہم ایک حدیث سے تمام حکم نہیں لگائیں گے، ہم اس موضوع کی تمام احادیث لیں گے، جیسا کہ بدعت کے حوالے سے ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا اور جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے تو ایجاد کرنے والے کو سب کا ثواب ملے گا، اور جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ ایجاد کیا تو جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے تو ایجاد کرنے والے کو سب کا گناہ ملے گا۔ تو معلوم ہوا کہ بدعت اچھی بھی ہے اور بدعت بری بھی ہے، کیونکہ اس حدیث کے اندر دونوں باتیں جمع ہو گئی۔ اچھا، گناہ کو ایجاد کرنا، اس کی ایک اور مثال میں بتا دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلا قتل کس نے کیا تھا؟ قابل نے کیا تھا، اپنے بھائی کا کیا تھا، حابل کا کیا تھا۔ یہ پہلا قتل تھا، یعنی پہلی قتل کی یہ واردات تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت تک جتنے قتل ہوں گے ان کا ایک گناہ قابل کو ملے گا، کیونکہ وہ قتل کو ایجاد کرنے والا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قتل کی ایجاد قابل نے رکھی۔ اب زمین پہ جتنے قتل ہوں گے اس کا ایک گناہ اسے ملے گا کہ اس نے یہ کام ایجاد کیا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں بدعت سیئہ، یعنی بری بدعت۔ اچھا، بدعت سیئہ جب ہے، جیسا کہ آج کے قرآن میں ہم نے سمجھا، اللہ نے چیزوں کی ضدوں کو پیدا کیا ہے، دن رات ضد ہیں ایک دوسرے کی، تو اللہ نے ضدوں کو پیدا کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بدعت سیئہ ہے تو بدعت حسنہ بھی ہوگی۔ اب بدعت حسنہ، دیکھیں ہم نے کوئی چیز اپنی جانب سے نہیں بنائی، اہل سنت کوئی چیز اپنی جانب سے نہیں بنا سکتے، کیونکہ شارع اللہ اور اس کا رسول ہے۔ یعنی وہ جس چیز کو حلال کہیں گے ہم حلال مانیں گے، وہ جس چیز کو حرام کہیں گے ہم حرام مانیں گے۔ ہم کسی چیز کو اپنی جانب سے نہ حلال کہتے ہیں نہ حرام کہتے ہیں۔ جس چیز کو اللہ رسول نے حلال کہا ہم نے مان لیا، جس کو اللہ رسول نے منع کیا ہم نے منع کر دیا۔ اب دیکھیں حضرت عمر، بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ ریفرنس، یہ جتنی باتیں میں بیان کر رہا ہوں یہ کل آپ سے میں پوچھوں گا، یاد رکھیے گا 1 by 1۔ اللہ کے رسول
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हज़रत उमर मस्जिद नबवी में आते हैं, लोगों को तरावी पढ़ता हुआ देखते हैं, तो लोग अलग अलग तरावी पढ़ रहे होते हैं। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु हज़रत उमर कहते हैं क्या ही अच्छा हो कि एक इमाम के पीछे सब तरावी पढ़े। हज़रत उमर उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इमामत के मुसल्ले पे खड़ा करते हैं, कहते हैं तुम तरावी पढ़ाओ, बाकी सब समात करेंगे। अगले दिन आते हैं तो हज़रत उमर ये मंजर देखकर कहते हैं कि नेमतुल बिदअतु हाज़िही, ये क्या ही अच्छी बिदअत है। अब देखें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनके मुतालिक अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, अल्लाह ने उमर की ज़बान पर हक को जारी कर दिया। यानी उमर की शान ये है कि हज़रत उमर ने जो मशवरा नबी अलैहिस्सलाम को दिया, अल्लाह ने उसको कुरान की आयत के तौर पर नाजिल कर दिया। यानी हज़रत उमर ने कहा कि या रसूल अल्लाह, अज़वाज मुतहरात को पर्दे के बारे में हुक्म होना चाहिए, अल्लाह ने पर्दे की आयत को नाज़िल कर दिया। हज़रत उमर ने कहा कि मकाम इब्राहीम को हमें मुसल्ला बनाना चाहिए, अल्लाह ने उनके हुक्म को, उनकी राय को कुरान में नाजिल कर दिया। यानी उमर वो है जिसकी ज़बान पर अल्लाह ने हक को जारी किया। तो आप सोचें कि हज़रत उमर कह रहे हैं कि ये बेहतरीन बिदअत है, तो मालूम हुआ कि बिदअत बेहतरीन भी होती है। अब बिदअत की कितनी अक़साम हो गई? दो, एक बिदअत हसना और एक बिदअत सय्यआ। हसना माने अच्छी बिदअत और सय्यआ माने बुरी बिदअत। जब ये दो बातें आपको पता चल गई, अब आते हैं एक और वाक़ये की जानिब जो बुखारी शरीफ में है, ताकि आपको पता चले कि हमारे अकाइद अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ तो जंग यमामा हुई, यानी एक बदबख्त ने नबूवत का दावा किया। उस जंग के अंदर तकरीबन कई हुफ़ाज़ शहीद हो गए, हाफिज़ कुरान शहीद हो गए। अब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिद्दीक़ अकबर के पास आते हैं। सिद्दीक़ अकबर खलीफा है। सिद्दीक़ अकबर से आकर कहते हैं या अमीरुल मोमिनीन, हम कुरान को एक जगह जमा कर लेते हैं, किताबी सूरत में जमा कर लेते हैं, क्योंकि पहले कुरान जमा नहीं था। पहले कुरान क्या था? हड्डियों पे लिखा हुआ था, पत्तों पे लिखा हुआ था, कपड़ों पे लिखा हुआ था, मुख्तलिफ जगहों पर लिखा हुआ था। एक किताबी शक्ल के अंदर इस तरह नहीं था। तो हज़रत उमर आकर कहते हैं या अमीरुल मोमिनीन, हम कुरान को जमा कर लेते हैं। अब सिद्दीक़ अकबर का जवाब क्या होता है कि ए उमर, ये काम तो नबी ने नहीं किया। अब हज़रत उमर क्या कहते हैं, ये काम नबी ने नहीं किया, हुआ खैरुन, लेकिन ये बेहतर है, ये बेहतर है कि कुरान को जमा किया जाए। तो सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं उमर की बार बार की तकरार पर अल्लाह मेरे सीने को खोल देता है और मुझे समझ में आ जाती है कि कुरान को जमा कर लेना चाहिए। अब ये दोनों हज़रत उमर और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जाते हैं हज़रत ज़ैद बिन साबित के पास। उनके पास कुरान का काफ़ी उलूम होते हैं, तो उनके पास जाकर कहते हैं ए ज़ैद बिन साबित, वो भी सहाबी हैं, क्यों ना कुरान को एक जगह जमा कर लिया जाए। तो ज़ैद बिन साबित भी वही जवाब देते हैं जो पहले सिद्दीक़ अकबर ने जवाब दिया था कि ये काम तो नबी ने नहीं किया। तो ज़ैद बिन साबित को कहा जाता है हुआ खैरुन, ये बेहतर है, ये बेहतर है। जब इसका बार बार तकरार की जाती है तो ज़ैद बिन साबित कहते हैं अल्लाह मेरे सीने को भी खोल देता है और मेरी समझ में भी आ जाता है कि कुरान को जमा करना चाहिए। फिर कुरान पाक को जमा किया जाता है और एक किताबी शक्ल के अंदर एक नुस्खा तैयार हो जाता है। देखें इस हदीस के अंदर, ये भी बुखारी शरीफ की है, मालूम हुआ कि जो काम नबी ने नहीं किया, अगर वो काम शरीयत से नहीं टकराता और उस काम में भलाई है तो वो काम हमें ज़रूर करना चाहिए। अच्छा, अब कुछ काम ऐसे हैं जिनको करना वाजिब तक कहा, मिसाल के तौर पे कुरान को पढ़ना। अब हम अजमी लोग हैं, अरबी लोग तो है नहीं। अगर आप कुरान को समझना चाहेंगे तो अगर आप हमारे पास आलिम कोर्स करते हैं तो पहले साल आपको तर्जमा कुरान सिखाया जाता है ताकि आप कुरान पाक का तर्जमा कर सकें।
अब अगर आप तर्जमा कुरान सीखेंगे तो किस चीज़ से सीखेंगे कि अरबी ग्रामर पढ़ेंगे। जब आप अरबी ग्रामर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कुरान पाक का तर्जमा कैसे होता है। तो इसलिए फुकहा ने लिखा अरबी ग्रामर का सीखना कुरान के तर्जमे को सीखने के लिए वाजिब है। अब ये सहाबा ने नहीं किया ये काम, लेकिन ये काम हो रहा है। तो मालूम हुआ बिदअत सय्यआ कौन सी होती है? जो किसी सुन्नत को मिटा दे, जो किसी सुन्नत के खिलाफ हो, उसे हम कहेंगे बुरी बिदअत। और जो किसी सुन्नत को ख़त्म नहीं कर रही, सुन्नत को मिटा नहीं रही, बल्कि सुन्नत को तक़वियत दे रही है, वो बिदअत हसना है। जैसे कि माइक के ऊपर अजान देना। अब माइक का इस्तेमाल क्यों किया गया? ताकि अजान की आवाज़ दूसरों तक पहुँचे। हज़रत बिलाल तो जो है मीनारे के ऊपर चढ़ के अजान देते थे। तो मालूम हुआ कि अगर वो बिदअत सुन्नत के फ़ायदे के लिए है तो हम उस बिदअत को बिदअत हसना कहेंगे। तो ये पूरी यानी निशिस्त का पूरे सवाल का जवाब इस तरह से कंक्लूड होगा, मुख्तसर होगा, खुलासा होगा कि बिदअत क्या है? नई चीज़ को बिदअत कहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, बिदअत की तारीफ क्या है? वो चीज़ जिसका वजूद नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा किराम के बाद में हुआ। नंबर 3, बिदअत की 2 अक़साम है बुनियादी तौर पर, बिदअत सय्यआ और बिदअत हसना। बिदअत सय्यआ वो होती है जो किसी सुन्नत को मिटा दे, और बिदअत हसना वो होती है जो किसी सुन्नत को तक़वियत दे दे, सुन्नत को आसान कर दे, उसे बिदअत हसना कहते हैं। अब अगर कोई आपसे सवाल करता है कि भाई ये बिदअत है, तो आप उससे पूछो यार बिदअत कहते किसे हैं, बिदअत की कितनी किस्में हैं, और बिदअत को किस तरह से शारे अलैहिस्सलाम ने बयान किया है। आप देखेंगे वो 100% वो इस बात को नहीं समझ पाएगा, उसे मालूम ही नहीं होगा। उसको सिर्फ एक हदीस याद है कि हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। भाई हर बिदअत गुमराही है, हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है, ये तो हम भी मानते हैं हदीस है। लेकिन इस हदीस का मकसद क्या है कि वो बिदअत जो किसी सुन्नत को ख़त्म कर दे, किसी सुन्नत को मिटा दे, वो बिदअत यहाँ मुराद है। अगर ऐसी बिदअत होगी तो लाजमी सी बात है गुमराही है। यानी देखो खारजी लोग जिन्होंने हज़रत अली को शहीद किया, ये पहला फ़िरका था, और इसने बिदअती एतकाद क्या बनाया? फैसला सिर्फ अल्लाह का, हुक्म सिर्फ अल्लाह का। जब हज़रत अब्बास ने कहा तुम ये कहते हो कि अल्लाह ही का, क्योंकि हज़रत अली और हज़रत अमीर मुआविया के दरमियान साजिश के तहत जंग हो गई। जब ये जंग करा दी, देखिए आज ये चीज़ें हम बआसानी समझ सकते हैं कि अमेरिका किस तरह देखो इस्लामी ममालिक को लड़ा रहा है। इस्लामी ममालिक लड़ रहे हैं, पीछे से वो आ जाता है और वो मुसलमानों को लड़ाकर उनके जो बाहिमी ताकत है उसको कमज़ोर कर देता है। तो इसी तरह काफिरों ने हज़रत अली और हज़रत अमीर मुआविया के दरमियान साजिशों से लड़ाई करा दी। अब वो लड़ाई का नतीजा ये हुआ, एंड ये आया कि दोनों की जानिब से हकम बनेंगे। हकम कहते हैं फैसला करने वाले। तो जो खारजी गिरोह था उन्होंने कहा अली हकम तो अल्लाह ही है, फैसला तो अल्लाह करने वाला है। अब उन्होंने क्या करा, एक आयत ले ली, इन्नल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हुक्म सिर्फ अल्लाह का है। लेकिन जब ये बात हज़रत अब्बास ने कही कि अगर फैसला करवाने वाला बनाना मना है, तो कुरान में देखो जब ज़ौजैन मियाँ बीवी आपस में लड़े तो अल्लाह ने कहा कि फैसला तीसरा करेगा। तो देखो फैसला करने वाला तीसरा बना है, तो मालूम हुआ कि कुरान में ये बात मौजूद है। तो जितने आप फिरके देखें वो सिर्फ वन साइड की बात पकड़ते हैं, अपने मतलब की बात पकड़ते हैं, फिर मुसलमानों के अंदर फिरकावारियत को जन्म दे देते हैं। तो फिर हम लोग, क्योंकि हमें दीन से कुछ सरोकार नहीं है, यही हमारी बदनसीबी है। ये दीन को सीखें ताकि आप दीन को सीख कर दीन की कुछ खिदमत कर जाए, ताकि आप अल्लाह आपसे कोई दीन का काम ले ले। अभी देखें एक मलेशिया का